السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ یقیناً اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلے جی، ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی سنت کا، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم سنت سیکھنے کی طرف جب بڑھیں گے تو وہ کون سی سنت ہے کہ گھر میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کی سنتیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کہنا، یہ سنت ہے۔ پھر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے ہو۔ کیوں؟ اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی، الحمدللہ۔ پھر گھر میں دیکھے داخل ہوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھ کے اندر داخل ہونی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ کل ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، پارہ نمبر 1، سورہ کون سی ہے؟ البقرہ، اور آیت نمبر ہے 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ جی 91 تک ہے، ٹھیک ہے، 2 آیات ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے تطبیق کی جانب۔ بئس ما، یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم جھٹکا دیں گے، با زیر اور آگے حمزہ، اور یہ دیکھیں اوپر ایک ساکن کی علامت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے جھٹکا دینا ہے۔ بئس مش، میم کی زبر کو شین کے ساتھ ملائیں گے۔ تارو، یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ بی ہی، یہاں پہ ہم 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے کیونکہ آگے یہ دیکھیں اوپر ایک مد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ انفسہم، یہاں پہ اخفا کریں گے، اخفا حقیقی کا قاعدہ ہے۔ انفسہم، یہاں پہ اظہار شفوی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ ان یکفروا، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، کاف پہ ہمز کرتے ہوئے، فرو پہ مد اصلی بالواو، بما یہاں پہ 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے، انزل اللہ، یہاں پہ نون پہ اخفا کریں گے اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ جو ایک ایسا اسم ہے، لفظ ہے جو اللہ یا اللہم سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر آ جائے، تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ انزل اللہ بغین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، یہاں پہ بھی ان ینزل اللہ، یہاں پہ ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ادغام مع الغنہ کے ساتھ، اور پھر اسی طرح سے اللہ کو پر پڑھنا ہے۔ ینزل کیسے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ، یہاں پہ نون پہ اخفا، اب چاہے آپ دوت پڑھیں یا زوت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن مخرج کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔
फضलिही आला, यहाँ पे खड़ा ज़बर है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। मैं यशाउ, यहाँ पे भी मद करनी है, चार हरकत के बराबर खींचेंगे। मिन इबादिह, यहाँ पे नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे यानी नून को, तो इबादिह यहाँ पे हम वक्फ करेंगे, ठीक है। फबाऊ, चार हरकत के बराबर खींचते हुए यहाँ पे मद इसली बिल वाव का कायदा। बिगौज़बिन या बिगौज़बिन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे। आला, आइन के महरज को वस्ते हलक से अदा करते हुए ला पे मद इसली बिल अलिफ का कायदा। औदब, ठीक है, बा पे कलकला औदब, ये जुम्बिश जो होती है ना, ठीक है, हिलाना, ठीक है। यहाँ पे बा साकिन करते हुए हम यहाँ पे कलकला करेंगे। वलिल काफिरीना, का पे मद्दे से बिल अलिफ का कायदा हो रहा है। फिरी, यहाँ पे याए मद्दा का कायदा है, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। अज़ाबुम मुहीन, यहाँ पे क्या है, इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो रहा है। हा ज़ेर या ही, यहाँ पे क्या है, अक्सा हलक से अदा करेंगे। ही नून, ठीक है। अगर हमने वक्फ करना है तो कैसे करेंगे, अज़ाबुम मुहीन, ठीक है, ठीक है। नून पे वक्फ कर देंगे, वक्फ बिलिस्कान, और यहाँ पे या मद्दा का कायदा वा, यानी होंठों की ना तमाम गुलाई से इज़ा नरमी के साथ पढ़ते हुए अलिफ मद्दा का कायदा। कई पे या मद्दा का कायदा है और लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, आगे साथ ही लाम है। व इज़ा क़ीललहुम, क़ीललहुम नहीं पढ़ना, अमूमन ऐसे ही पढ़ा जा रहा होता है, लेकिन हमने इन हरकत को लंबा नहीं करना। मीम पे ज़ार शफ़वी आमीनू, यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, ठीक है, खड़ा ज़बर है ना। नू पे वाव मद्दा का कायदा। बिमा, यहाँ पे चार हरकत के बराबर खींचेंगे। अंज़लल्लाहु, नून पे इख्फा करते हुए लाम की ज़बर को लाम के साथ पुर करते हुए अल्लाह को क्या करेंगे, पुर क्या है, लाम को पुर करना यानी मोटा पढ़ना, ठीक है। तो कैसे, अंज़लल्लाहु, ठीक है। क़ालू मद्दे बिल अलिफ, मद्दे बिल वाव, नु यहाँ पे झटका दिया जाएगा। मीनो, यहाँ पे झटका नहीं देना, ना ही इस हरकत को, नून की पेश को हरकत को लंबा करना है। बीमा, यहाँ पे चार हरकत के बराबर खींच दें। ज़िला, ठीक है, इन हरकत को ना ही जा की ज़ेर को ना ही लाम के ज़बर को लंबा करना है। अलई, लई पे यालीन का कायदा है, ना पे मद्दे बिल अलिफ का कायदा। वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से यकफुरूना, रॉ पेशवा रू क्या है, मद्दे बिल वाव का कायदा। बीमा, मद्दे बिल अलिफ का कायदा। व रॉ आह, ठीक है, ये यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हा की साउंड ज़रूर निकालनी है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और रॉ को पुर पढ़ना है, चार हरकत के बराबर खींच दे। व रॉ आह, ठीक है। फिर वाहुवल, ठीक है, यहाँ वाव की ज़बर को ओ हमने लाम के साथ मिलाना है, लेकिन हिलाना नहीं। अल वाहुवल हक़, क़ाफ पुर पढ़ना है। मुसद्दी, सौद भी पुर पढ़ना है, सौद को दाल के साथ मिलाएंगे। मुसद्दिक़ल लिमा, ठीक है, कल, आपने ये नहीं कलिमा नहीं करके पढ़ना, यानी लाम को पुर नहीं पढ़ना ना। बाकी अल्लाह और अल्लाहुम्मा का जो उनसा लाम है उसको पुर पढ़ेंगे, बाकी तमाम लाम क्या है, बारीक पढ़े जाएंगे। मुसद्दिक़ल लिमा, मद्दे बिल अलिफ, माअहुम इज़हार शफ़वी, कुल, यहाँ पे लाम को हिलाएंगे नहीं। फलिमा, ज़बर ज़ेर ज़बर, इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। ताक़, यहाँ पे क़ाफ पे कल का है। ताक़तुलूना, ये वाव मद्दा का कायदा, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। अम्बिया अल्लाही, यहाँ पे क्या है, इदगाम, ये कौन सा हो रहा है, इक़लाब के कायदे का इदगाम, ठीक है। कैसे, ये क्या है, गुन्ना ही हो रहा है ना, ठीक है, इदगाम ही हो रहा है ना। लेकिन ये आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको इक़लाब का कायदा कहते हैं। वो कैसे, एक छोटा सा मीम है और आगे बार है, ठीक है, ये याद रखना है आपने ना, नाम भी इनके। अम्बिया अल्लाही, चार हरकत के बराबर खींचते हुए अल्लाह को पुर पढ़ना है, लाम को इसके और ही की ज़ेर है, और फिर म्याँ लंबा नहीं करना। म्याँ, यहाँ पे नून को इख्फा करना है, पूरा इख्फा, आगे क़ाफ आ रहा है। क़बलू, अब ये बा पे कलकला है। यहाँ पे इख्फा, यहाँ पे भी इख्फा। तुम मुमिनीन, यहाँ पे क्या है, इदगाम में शफ़वी का कायदा हो रहा है। मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिका आ रहा है, ठीक है। मुमिनीन, यहाँ पे झटका। आप बस एक चीज़ याद रखें, हमज़ा और ये जज़म जहाँ पे भी इकट्ठे आ जाए ना, झटका दे दिया करें, ठीक है।
मु ऐसे मो नहीं कहना, मो नहीं कहना, ठीक है, पढ़ना नहीं है इस तरीके। मुमिनीन, ठीक है, यहाँ पे या मद्दा का कायदा, और जब वक्फ कर देंगे साकिन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वक्फ बिल इस्कान कहेंगे, ठीक है। हमने आरजी थी ना, इसको हमने क्या दिया, आरजी सुकून दिया, ठीक है। इसकी अपनी ओरिजिनल सुकून यानी साकिन होने की इलामत नहीं है, इसलिए आरजी सुकून है, तो वक्फ बिल इस्कान कहते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दो आयात की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे और हम सब की ज़ुबान की गिरें खोल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।